Dear students of class 12th entrepreneurship, our today's topic is factors affecting business environment or factors affecting entrepreneurial opportunities. There can be two questions. What are the factors affecting or influencing business environment, or what are the factors influencing the entrepreneurial opportunities? In both the cases, you can have the same answer. So far as these factors influencing this business environment are concerned, there are various factors when we speak in general, that is, economic factors, social factors, political factors, environmental factors, cultural factors, traditional factors, etc. and etc. But here today we will discuss only two factors, that is economic factors and social factors. These are enough to discuss here related to our topic today. But among these two factors, we will discuss only one factor today, that is economic factor, and in tomorrow's lecture I will discuss social factors. These economic factors include the following, or the economic environment of an organization include the following factors. ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, जिनमें से आज मैं सिर्फ एक ही फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनके भी फैक्टर्स हैं. दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो इंक्लूड सम फैक्टर्स, यानी इसके जो जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी वो दीज आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. नंबर वन फैक्टर जो है that is economic condition. This is also an economic factor. Number two, economic system. Number three, economic planning. Number four, per capita income. Number five, labor. Today we will discuss these five factors, five economic factors I can say. Number one, economic conditions. The economic conditions of a country are very important determinants of business environment. For example, national income, economic resources, assets, etc. देखिए, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक एंटरप्राइज का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में ये एग्जिस्ट हो रही है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द एंटरप्राइज, जो भी इन्वायरमेंट है उसमें हमें कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं. जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन नेशनल इनकम, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एसेट्स. नेशनल इनकम कैसे? देखिए, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको काम में लाते हैं, व्हेन दीज आर पुट इन प्रोग्रेस, तो हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वी अर्न, purchase and sell some assets and earn income which can be included in on national level. This economic condition highly affect the business environment in which the enterprise prevail. Number two, the economic system. The economic system of a country also influences the business environment. It includes capitalists, socialists, communists, etc. The economic activities are framed for earning, spending and saving. इकोनॉमिक सिस्टम जो है कंट्री का, इसमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस सिस्टम से इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें कैपिटलिस्ट्स का भी माना जाता है,
और सोशलिस्ट्स भी टांग उड़ाते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है और इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये बन जाता है एक ऑब्स्टिकल किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ी सी फर्क पड़ जाती है। जनरली जो हम अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग, वो तो आम आदमी की बात है, जो जनरल ये क्या है, मीनिंग है इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम फ्रेम करते हैं किस लिए करते हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। बट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्टली वी इंट्रोड्यूस द कैपिटल, we purchase goods, we purchase the material or raw material, and then we make an expenditure. We sell and purchase. First we purchase, make expenditure, then sell for these products to earn the income. Then we purchase again for resale, and the process continues. लेकिन इसमें जो है ये एक सिस्टम होता है, अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, परचेजिंग, सेलिंग, इसमें फर्क पड़ जाती है। इसमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ए कंट्री। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। इसका मकसद ये होता है कि इकोनॉमी इंप्रूव हो जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद जो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन मैनेजमेंट चैप्टर। तो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो affect the business environment. This economic planning, this also influences this business environment or entrepreneurial opportunities. तो इसमें क्या है, जो प्लानिंग के तहत जो इकोनॉमी इंप्रूव करनी होती है, तो उसमें जो है बिजनेस और इसमें एक टकराव जैसा पैदा होता है और दे कोइंसाइड and this becomes the hurdle. Number 4, per capita income. Entrepreneurs convert idle resources into national income. For example, land, labor, capital, raw material, etc. They help to increase per capita income. This also affects the environment of an enterprise. जो entrepreneurs हैं वो idle resources काम में लाते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम में। फॉर एग्जाम्पल, लैंड का तो पता ही है आपको, इन जनरल। लेबर, कैपिटल, ये तो आम बात है कि कैपिटल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उससे इनकम बढ़ जाती है, तो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होती है। लेकिन रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल में एक चीज है कि हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फिर उनको छोड़ जाते हैं, उनको दे आर ऑफ no use now, and we recycle these products. For example, जो हमारे used products होते हैं, bottles होते हैं, buckets होते हैं, बाकी जो medicines होते हैं, toothpastes के वो जो प्लास्टिक में बने होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है, दोबारा काम में लाया जाता है और उसको इसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। और ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट में अफेक्ट करते हैं ऐसे फैक्टर्स भी। एंड फाइनली, लेबर। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। लेबर की क्वांटिटी, नंबर एंड साइज एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज और वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका साइज क्या है, उनका नंबर कितना है, और अगर कम है या ज्यादा है तो क्वालिटी क्या है। ज्यादा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, कम है तो क्वालिटी ठीक है। तो ये चीजें जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये भी इफेक्ट कर सकती है एक एंटरप्राइज की ग्रोथ में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द साइज, quality and quantity of these employees. The division of labor is important element to improve the production. अब प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में हम डिविजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी राइट पर्सन टू रिक्रूट राइट पर्सन्स एट राइट प्लेसेस। जो जिस काबिल हो उसको उसी काम में लगाए, उसको किस जगह अपॉइंट करें।
जो जिसके काबिल नहीं है उसको वो काम ना दिया जाए. तो assign the task to the capable persons only. These were the factors which we discussed today, and tomorrow we will discuss social factors in the next lecture. So, dear students, have a nice day. Thanks.